So we are saying that there is one s orbital and two p orbital. Okay, so of course I am drawing this axis, and this is your s orbital, which is involved in hybridization. Then we have here one p orbital. Let's say the p orbital is like this, and we have another p orbital. It is like this. Now, all these orbitals, so I can say that we have here s plus, let's say we have py and pz. It can be anything. You can include px only. It's okay. Now, if I talk about the phases here, for this p orbital, this is the positive phase, this is the negative phase. Okay, don't understand that ki negative or positive का मतलब literal meaning जो है negative positive का वो नहीं है. This is just the phases to define it. ये इसका phase है negative, ये इसका phase है positive. और of course यहाँ पे जो s orbital है, या तो वो positive phase का होगा या negative phase का होगा, सेम ही आपको मिलने वाला है orbital. ये y axis हो गया और ये z axis हो गया. जब ये आपस में तीनों combine करते हैं, so they combine in this manner. इस तरीके से, because तीन ऑर्बिटल कंबाइन हुए, एक s और दो p, you will get three orbitals. So three orbitals obtained here are like this. And all are going to have the same phase. So now, if I want to draw the bond angle between all these three, so the bond angle between these orbitals is going to be 180 degree, because we have three orbitals, and the maximum distance these three orbitals can stay apart from each other is 120 degree, not more than that and not less than that. So always orbitals are trying to arrange themselves in the space in such a manner that they experience the minimum repulsion. So since we have used here one s and 2p orbital, this is sp2 hybridized orbital. Now let's take an example here. BCl3, the same example here which we have taken. Now we'll be drawing this in the form of this orbital. So since boron is, this is what electronic configuration of boron, in the excited state it is going to be like this, and now these are the three chlorines which you attached. So boron here is hybridized. So it has three orbitals like this at 120 degrees to each other. This is plus, plus, and plus. Always the number of atomic orbitals combining will always be equal to the number of hybridized orbitals formed. So this is for boron. Now, three chlorine atoms are there. So these three chlorine atoms, of course, if I talk about chlorine, atomic number is 17. So it has 3s2, 3p. One second, guys. One second. Yes, as I was saying, it will be 3s2, 3p5. So 3p5, that means, sorry, three orbitals are here. 1, 2, 3, 4, and 5. That means this only one orbital is unpaired. So this 1p orbital is going to come and combine here, here, and here. So that means we will have, this is also chlorine, this is also chlorine, this is also chlorine, and the central thing is your boron. So the electrons are going to be present in this overlapping area. The two electrons, one from boron, one from carbon, they will be present in this overlapped area, and the bond formed here will be the sigma bond. And geometry, if I talk about the geometry of the molecule, it will be trigonal planar, because you have only three, and for three I have told you that it is going to be trigonal planar only. We have done this, okay? Just 1 minute. What happened here? Yeah.
geometry is going to be trigonal planar. That means whenever the hybridization is sp2, it is going to be planar in nature. ओके, प्लेनर इन नेचर मतलब प्लेन में ही वो रहने वाला है, आउट ऑफ प्लेन. जैसे टेट्राहेड्रल में दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक प्लेन से बाहर मतलब तुम्हारी तरफ, एक प्लेन से अवे, जो मैंने आपको CH4 का स्ट्रक्चर बताया था वैसा नहीं होगा, ये आपके पास प्लेन में रहेगा. अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए आपको स्टेरिक नंबर पूछूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर? टेल मी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्टेरिक नंबर हियर? व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ स्टेरिक नंबर? लास्ट क्लास में बताया था. Yes, Abhilash, good. It is going to be 3. Steric number was the number of atoms bonded with the central atom plus the lone pair left. The lone pair is present, so the steric number is going to be 3 here. Okay, fine. If I talk about bond angle in this compound, bond angle is going to be 120 degree. All these bonds are going to have the same angle, and that is 120 degree. Okay, so now there will be some compounds which will be having 3 steric number 3, but lone pairs will also be there. Okay, so let's write down, let's draw a table there. This is the type, this is the type of molecule AB3 or AB2L. L is a lone pair here. Let's talk about shape. Shape can be your trigonal. ट्राइगोनल तब होगा जब एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. इसके लिए भी स्टेरिक नंबर का वैल्यू 3 है, इसके लिए भी स्टेरिक नंबर 3 है. For both steric number is 3 because यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 3, लोन पेयर 0, टोटल वैल्यू 3. Here also steric number is going to be 3 only because number of bonds attached is 2 plus there is one lone pair, so whole value coming out to be 3 only. But आपको पता है कि जब भी हम ज्योमेट्री बताते हैं, शेप बताते हैं, तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते. So we need not to consider the lone pair. तो जब लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, that is going to give you a V shape or you can say that a bent shape, जो हमने वाटर में देखा था. Now एग्जाम्पल बात करते हैं. ट्राइगोनल में आपके जो एग्जाम्पल्स आएंगे, C6H6 आ जाएगा, CO3 2 माइनस हो जाएगा, HCO3 माइनस, H2CO3, या फिर ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एंड ऑल सब प्लेनर होते हैं. इफ यू रिमेंबर sp2 हाइब्रिडाइज होता है. थोड़ा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. देन वी हैव BF3, जैसे BCl3 है वैसे BF3 भी होगा. देन BOH whole thrice, then SO3, then NO3 minus, या फिर C60, polar ends if you remember. All are going to be trigonal planar in nature. और अगर AB2 की बात करें, that means it has one lone pair and steric number is still 3. So the example is going to be NOCl or O3 या फिर NO2 minus. All are these examples. Write down, then we will individually draw the structure of these. तो आपको खुद ही आइडिया, जैसे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही समझ आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि कैसे उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है. राइट डाउन दिस टेबल, देन आई विल टेल यू. जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकते हैं उनका हम स्ट्रक्चर बताएंगे. डन राइटिंग? ओके,
So let's talk. We'll be talking about few important examples. Let's say first is your SO3. Okay. कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे डरना नहीं है कि क्या स्ट्रक्चर आएगा, कैसे आप उसको ड्रॉ करोगे। हाँ स्निग्धो, दो क्लोरीन फॉर्म कर लेता है पाई बॉन्ड, उसके पास खाली जगह ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। विल टॉक अबाउट इट इन ऑर्गेनिक, एक्चुअली ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ठीक है, SO3 की हम बात करें तो हम समझ में आ रहा है कि सल्फर इज दी सेंट्रल एटम। ओके, अब आप सेम तरीके से करो जैसे अभी तक करते आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 ऑक्सीजन है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन को अगर न्यूट्रल फॉर्म में रहना है तो डबल बॉन्ड बना के रहेगा। तो आप इस डबल बॉन्ड को इस तरीके से अरेंज कर दोगे। अभी अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर पूछूं आपसे, number of atoms attached is 3 and there is no lone pair left. Steric number is 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो शेप क्या होने वाला है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर ऑलवेज। सेकंड एग्जांपल O3। अब ओजोन O3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेम करना है। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 ऑक्सीजन और है, एक के साथ तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ओजोन के लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। और बाकी जो एक ऑक्सीजन होता है उसको ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से ही हैज लाइक ऑक्सीजन हैज ओनली वन लोन पेयर प्रेजेंट हियर। दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू रिमेंबर। ऑक्सीजन हैज ओनली वन लोन पेयर लेफ्ट, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरे के साथ पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, दिस इज ओनली नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन को डिनोट कर दिया। अब आपको पता है कि हमने इसको अरेंज जो किया है, इसके स्ट्रक्चर को वो ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में अरेंज किया, बट आई कांट कंसीडर द लोन पेयर्स इन द शेप। दैट इज व्हाई अगर इसके स्टेरिक नंबर देखें, टोटल नंबर ऑफ अटैच्ड विद दिस ऑक्सीजन इज 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1, आंसर इज 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। शेप की बात करें तो इट इज नो लॉन्गर बी ट्राइगोनल प्लेनर बिकॉज आई एम नॉट इंक्लूडिंग द लोन पेयर्स, इट इज अ बेंट शेप और यू कैन से दैट p shape. Now if I take the example of CO3 2 minus, okay, again carbon is a central atom, number of valence electrons are 4 for carbon and you have two negative charge here. Okay, so and 3 oxygens are there. So first of all, these two will find form the bond, double bond with oxygen. Okay, one neutral atom. And since 2 negative charges there, that means the 2 other oxygen. Here 1 electron, there 1 electron, here 1 electron, here 1 electron. They will have a negative charge to form the octet complete. Of course, you have 1, 2 and 3. Steric number तो 3 है, मतलब sp2 होगा trigonal planar की form अरेंज करना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ। क्या थर्ड एग्जांपल में रेजोनेंस पॉसिबल है? इज रेजोनेंस पॉसिबल इन थर्ड एग्जांपल? Is resonance possible in the third example? Yes, okay. तो अगर मैं इनके बॉन्ड लेंथ की बात करूं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है तो इनका बॉन्ड लेंथ सब कैसा होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो यू कैन आल्सो राइट डाउन हियर वन मोर पॉइंट, all 3 CO bonds are
इक्विवेलेंट, मतलब all these bonds are equivalent, although वो दिखने में different लग रहे हैं, but they are almost similar. Okay, so next example ले लेते हैं, fourth example, NO2 minus. Again nitrogen will be at the central atom है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है और 2 ऑक्सीजन है, तो एक के साथ तो ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन जो है एक नेगेटिव फॉर्म कर रहा है, एंड स्टिल नाइट्रोजन इज लेफ्ट विद वन लोन पेयर. ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्टेरिक नंबर हियर, तो एक एटम ये रहा, एक एटम ये 2 प्लस वन लोन पेयर, दैट इज 3. हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2. शेप अभी क्या हो जाएगा, वी शेप और पेंट शेप. ठीक है, एंड फाइन. एनीथिंग एल्स? अच्छा, अगर मैं इस NO का बॉन्ड ऑर्डर पूछना चाहूँ आपसे, बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ चुके, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? What will be the bond order for this N double bond? नोट्स चेक करो और फाइंड आउट करो, बताओ मेरे को जल्दी से, और सबको बताना है, यहाँ बस बैठना नहीं है. ओके, विवेक, जॉन, जयिता, टेल मी द आंसर. व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? कौशिक, क्रिश, शांति, शंकर, संपदा, रोशनी, everyone have to tell. Find out the bond order for this. Varun, Yash, Sanjana, Smarnika. इसमें दो आपका भी गलत है और ध्रुव आपका भी गलत है बॉन्ड ऑर्डर. जयता आपका करेक्ट है, सुहान करेक्ट है, गुड. ओके, क्या फॉर्मूला था बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर्स. आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे क्या नाउ यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल के लिखो, इन N2O5 okay, in N2O5 N is sp2 hybridized, but in solid N2O5 exists in NO2 plus, where it is sp hybridized. ओके, तो व्हाट डज दिस मीन इज कि N2O5 का नॉर्मल केस अगर आप लोगे तो नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, बट अगर वो सॉलिड फॉर्म में तो N2O5 जो है वो NO2 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और NO2 प्लस के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा. ओके, इज इट क्लियर?
और N2O5 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो वो भी लिख लो। 2 नाइट्रोजन, एक सेंटर में ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड O O, डबल बॉन्ड O O, इन दोनों ऑक्सीजन पे माइनस, और क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो दे विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए कंपाउंड ऑल टुगेदर न्यूट्रल रहता है, बिकॉज 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। लिखो ये। तो आप स्टेरिक नंबर निकाल के कभी भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट इज योर sp3 हाइब्रिडाइज। अब थोड़ा सा चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको पूरी समझ में आ रहा होगा sp3 का मतलब क्या है, एक s और 3 p हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इसमें लिख लो, इट इज द मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल्स। अभी 3p ऑर्बिटल्स जो आप ले रहे हो, दैट मींस px, py एंड pz, अब तीनों ही इसमें इंक्लूड होंगे, ओके। एंड दे विल फॉर्म इक्विवेलेंट, सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, है ना, इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ओके। अब अगर 1s और 3p को आप कंबाइन कर रहे हो, मतलब टोटल 4 को कंबाइन कर रहे हो, तो आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स भी कितने मिलने वाले, 4 मिलने वाले। और 4 जब भी वैल्यू होती है तो यूजुअली कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या रहता है, टेल मी, व्हेनेवर देयर इज अ वैल्यू 4, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, आंसर करो। यस, गुड, टेट्राहेड्रल। सो राइट डाउन हियर 4 sp3 orbitals are directed towards 4 corner of tetrahedron, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बना रहे हो ऑल टुगेदर दिस, ओके। इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीथेन का स्ट्रक्चर, ओके, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना है और p का परसेंटेज कितना है, व्हाट विल बी आंसर। Yes, good. 25% S and 75% P. How? अब किसी को अगर डाउट हो रहा होगा तो आपको पता है कि sp3 है, परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, एक s है, तो परसेंटेज s निकालोगे, s एक ही है और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 into 100, दैट मींस 25%। और अगर मेरे को परसेंटेज p निकालना है, इसमें p कितने हैं, 3, टोटल ऑर्बिटल्स 4 है, into 100, that means it is going to be 75%। and of course अगर s 25% है तो बचा हुआ सारा p ही ऑर्बिटल होगा ना, anyway। next is angle between sp3 hybrid orbital is 109.5 degree, okay।
उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 109. अब मैं पहले आपको इसको ऑर्बिटल्स के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन हम डायग्रामेटिकली भी बताएंगे. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CH4. कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6. दैट मींस 1s2 2s2 2p2. अगर हम नॉर्मल स्टेट में ड्रॉ कर रहे हैं दैट मींस ग्राउंड स्टेट, you know that this is how you are going to fill the orbitals. Now जब excited state होगा तो one of the electrons will be excited to this p orbital. You have single electron here and all the single electrons here. Now these have combined together. तो अब जब excite हो गया तो ये सब combined हो जाएंगे. So now पहले ये S था और ये P था, अलग अलग थे, बट अब ये combine हो गए सब के सब तीनों ऑर्बिटल, सॉरी चारों ऑर्बिटल कैसे हो गए sp3, and because of intermixing, and they have the same energy and equal energy. So now all will have 1 electrons. अभी 4 हाइड्रोजन है आपके पास. So the 4 hydrogen will come like this. They will give their electrons to these and they will form CH4, and this is how bonding is going to happen. Now if I want to draw diagrammatically, so I know that these are the axes. Okay, this is your x-axis, then you have your y-axis and z-axis. एक तो s ऑर्बिटल होगा, then you have x-axis पे px, then py, and then z-axis पे pz. तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा. ठीक है. अब जब ये आपस में सब कंबाइन करेंगे, so they will lead to the formation of 4 orbitals, and वो 4 orbitals जो होंगे वो एक दूसरे खुद को एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि they will have the max like minimum repulsion, ज़्यादा repulsion फील ना हो. तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल होगा that is going to be 109.5. so this is your carbon. कार्बन का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं. कार्बन के ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है. so this is your sp3 hybridized orbital of carbons. 4 ऑर्बिटल थे, 1s and 3p, तो हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिले. अब ये जो आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, दे डू दी ओवरलैपिंग विद हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तभी वो CH4 बॉन्डिंग फॉर्म हो पाती है. तो अभी मान लो हाइड्रोजन का s, क्योंकि हाइड्रोजन तो s ही फिल करता है, तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड हियर दिस इज हाइड्रोजन. तो ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वहीं पे आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करने वाले हैं. इज इट क्लियर? यस और नो? So this is the structure of CH4. Hybridization is sp3. Steric number से भी find out कर सकते हो. Shape और geometry is tetrahedral. Okay, and steric number is equal to 4. तो अगर steric number 4 आ रहा है, then it is going to be sp3 hybridized. That the hybridization of that atom is going to be sp3. Next example हम जो लेंगे यहाँ पे, let's say this is example 1. Second is our example 2. Now in example 2, I am taking this ammonia, NH3. So if I want to find out the steric number कितना होगा? Number of bonded atoms 3, और I have 1 lone pair. तो 1 lone pair होगा तो +1. अगेन steric number आ रहा है कितना? 4. steric number 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3. और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो आपको शेप भी बताना है, बट आपको मैंने बताया था अमोनिया का, मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो टेट्राहेड्रली आप इसको अरेंज करोगे. नाइट्रोजन सेंटर पे, ये एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ और एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर. Last class I have shown you how tetrahedral structure looks like. Last to last class में भी. This is how tetrahedral looks. So of course एक वेज पे है, एक डैश पे, तो it is out of plane. मतलब सारे एटम्स एक प्लेन में नहीं है, अलग प्लेन में. So अब जब हम इसकी ज्योमेट्री बताएंगे तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे
और ये जो लोन पिरामिड, ओके, एंड यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी, पहले 109, नॉर्मल केस में इट शुड बी 109, बट नाउ इट इज 107 डिग्री, so bond angle has reduced to 107 degree. ऐसे ही मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था वाटर का, that is H2O. So for H2O, steric number is going to be, number of atoms दो है, that is hydrogen, और लोन पेयर भी दो होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर. स्टेरिक नंबर इज अगेन 4. स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आपको कर देना है sp3, बिना कुछ सोचे समझे सीधा. अब शेप की बात करें तो वो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, टेट्राहेड्रली आप अगर अरेंज करोगे, ये हाइड्रोजन इधर हो गया, ये हाइड्रोजन मान लो आपकी तरफ है और एक बैक की तरफ पे लोन पेयर है, तो क्लियरली आई कैन सी कि ये दोनों लोन पेयर्स को तो मुझे इंक्लूड ही नहीं करना है. तो शेप कैसा हो जाएगा, बेंट शेप, या फिर आप बोल सकते हो वी शेप. एंड अगेन इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा. आपको पता है लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है, तो ये लोन पेयर को इस तरफ पुश कर रहे हैं. जब लोन पेयर को इधर पुश कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन है, तो ये हाइड्रोजन को लिटिल बिट इनसाइड पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल और फर्दर डिक्रीज हो रहा है, एंड बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड टू नाउ 104.5 degrees. Is it clear? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो हम एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना सकते हैं. हाँ, संपदा प्लेन में नहीं है सारे, ऑफ कोर्स एक वेज पे है, एक डैश पे है, तो दे आर नॉट इन प्लेन. दिस इज टाइप AB4 हम लेंगे जिसमें सारे बॉन्डेड है. AB3L लेंगे जिसमें एक लोन पेयर है. AB2L2 जिसमें दो बॉन्ड पेयर्स हैं, दो लोन पेयर्स हैं. और AB L3 जिसमें एक बॉन्ड है और तीन लोन पेयर है. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनके शेप की और यहाँ पे एग्जांपल की. AB4 सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, CH4. ऑलवेज इट इज गोइंग टू गिव यू, सारे बॉन्डेड है तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है तो ऑलवेज बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 109. AB3L एक लोन पेयर अगर होगा तो आप अमोनिया ले लो या फिर XO3 ले, ऑल दीज आर गोइंग टू कम इन दिस थिंग. इसका is going to give you a layer
Okay, so as I was saying, the last one is going to be linear because there is only one bonded atom. So वो तो single ही bond बनाएगा. Lone pair को we won't consider. Draw this table फटाफट से. Okay, now we will be talking about some other examples of sp3 hybridization. ये sooner or later you have to remember. अभी नहीं याद करोगे तो बाद में याद करने ही पड़ेंगे ये सब. सबसे पहला एग्जांपल है विद बेरिलियम. बेरिलियम के लिए हम बात करेंगे BeCl2 सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, तो BeCl2 जो है ये वेपर फेज में तो BeCl2 के जैसे ही रहता है, मतलब ऐसे ही रहेगा if this is in the vapor phase. But if it is in solid state तो ये पॉलीमर बन जाते हैं, मतलब एक साथ कंबाइन कर लेते हैं. सो एक बेरिलियम, ये जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग है. यहाँ पे क्लोरीन, इन दोनों के बीच में इस तरीके से क्लोरीन होता है. और क्लोरीन वैसे दो बॉन्ड नहीं बनाता, बट यहाँ पे इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड यू हैव टू लाइक रिमेम्बर दिस. तो हम बहुत डिटेल में एंड ऑफ द 11th क्लास में पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो बेरिलियम क्लोराइड in vapor phase contains BeCl2. Okay, and in solid form it is present in polymeric form. पॉलीमर टाइप. और इट इज नॉट लाइक कि ये सिर्फ 3 बेरिलियम है, ऐसे लंबे लंबे चेन्स होंगे. सो यू कैन ऑल्सो लाइक इस तरीके से करके n लिख सकते हो. n इज लाइक n नंबर ऑफ टाइम्स दिस इज कंबाइनिंग. ओके, सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में कई बार. नेक्स्ट इज योर with the example of boron. Now, boron is going to form here Bf4 minus. Okay, Bf4 जो structure है, it is mostly like this. तीन फ्लोरीन तो आराम से सिंगल इस तरीके से यहाँ पे जुड़े होंगे. एंड द लास्ट वन फ्लोरीन इज गोइंग टू form this kind of datum bond and they will have a minus charge. तो थोड़ा इस टाइप का. तो यहाँ पे लिख लो Bf4 minus have a very low tendency to form complexes in aqueous solution. ठीक है, ये इस फॉर्म में रहता है. थोड़ा सा aqueous complexes जो है we will be studying about this complexes in 12th class. ठीक है, अभी के लिए बस स्ट्रक्चर देख लो. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ इट. ओके, कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम एग्जांपल की यहाँ पे बात करें तो दिस इज लाइक गोइंग टू बी
C is carbon. कार्बन के लिए काफी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. डायमंड, डायमंड भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. CCl4 ले लो, CH4 ले लो जो हमने यहाँ पे देखा. और सारे अल्कीन, नॉट जस्ट दिस वन, ऑल अल्कीन्स. जैसे C2H6 हो गया, जो 10th क्लास में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन पढ़े थे. तो ऑल दोज अल्केन्स will have this value. Just 1 minute, guys. Yeah, C2H6. These are again the examples here. Or you can take CH3 minus. अब minus मतलब एक lone pair present है. एक lone pair plus 3 steric number 4 हो गया. So this will also have sp3 hybridization. D is with silicon. Silicon का SiCl4. Okay. और silicates, etc. Silicates is nothing but SiO2. ओके. अब SiO2 कैसे कंबाइन रहते हैं? सिलिकॉन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, समथिंग लाइक दिस. देन अगेन सिलिकॉन, 4 मोर ऑक्सीजन. तो इस तरीके से शीट काइंड ऑफ नेटवर्क फॉर्म करते हैं और हर एक सिलिकॉन 4 मोर ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है. लाइक दिस. और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. यहाँ जो सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन है that is sp3. okay, so you can write down here SiO2 is a covalent network solid like diamond की तरह covalent network है ये, और इस तरीके से ज्वाइन रहेगा एक दूसरे से. नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल बात करें नाइट्रोजन फैमिली के लिए, तो नाइट्रोजन फैमिली में यू विल हैव ammonia of course, and NH2 minus which is known as amide ion. अभी NH2 minus का मतलब क्या है कि एक लोन पेयर ऑलरेडी होगा, वो तो नॉर्मल है, एंड अलोंग विद दैट यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, मतलब एक लोन पेयर और है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ, नाइट्रोजन सेंटर में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे हमेशा रहता है, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर जिसकी वजह से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन फैमिली में यू कैन राइट डाउन हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH2H2. तो जो ये नाइट्रोजन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, along with that you will have one lone pair. तो दोनों ही नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना है, 4. तो हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना रहेगा, sp3. This is also sp3 hybridized and this is also sp3 hybridized. Just write down here, each nitrogen atom is tetrahedrally surrounded by 1 nitrogen, 2 hydrogen and 1 lone pair. है ना, नाइट्रोजन के पास दो, हर एक दोनों, इस नाइट्रोजन के पास भी एक नाइट्रोजन यहाँ जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है. So they are arranged like tetrahedrally. Next example which you can take here is NH2OH. This is the name of this. We will लिख लो hydrogen. Name of this compound is hydroxylamine. Okay, don't worry, नाम नए लग रहे होंगे, I understand that, but धीरे धीरे you will be familiar to these things, और जब एक बार familiar हो जाओगे तो चीजें लर्न होने लग जाएंगी. ओके, तो अभी से स्ट्रेस नहीं करना है कि बहुत सारे नाम हैं कैसे लर्न करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. स्ट्रक्चर हियर इज नाइट्रोजन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद 1 ऑक्सीजन हियर. ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन से जुड़ा है विद 1 लोन पेयर. तो अगेन इस नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4. तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. और ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, लोन पेयर. सो फॉर दैट मैटर ऑक्सीजन के लिए भी स्टेरिक नंबर इज 4. सो बोथ विल बी sp3 hybridized. So here write down one thing, lone pair repulsion increases the
NO बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है कि ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और ये ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अगर ये ज्यादा क्लोज आएंगे तो ऑफ कोर्स इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो NO के बीच का बॉन्ड लेंथ है, this is just a single bond length, I don't want you people to get confused, single bond length, तो ये bond length थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज F, and we will be talking about the examples of phosphorus here. इसका सबसे कॉमन एंड सबसे अच्छा एग्जांपल है P4। फॉस्फोरस जो है वो सिर्फ P के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, P4। मतलब 4 फॉस्फोरस जो है, और ये फॉस्फोरस के और भी कई टाइप्स होते हैं, बट दिस इज योर व्हाइट फॉस्फोरस। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एंड ऑल दीज फॉस्फोरस आर कंबाइंड लाइक दिस, शेप जो होता है इस तरीके से होता है। ओके, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो यहाँ पे 60 डिग्री। हर फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर अभी बचा होगा, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है ना फॉस्फोरस, तो अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो फॉस्फोरस पे भी एक लोन पेयर है, until and unless you have some positive or negative charge. The hybridization of this, all the phosphorus atoms here is sp3 hybridization, क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 4, so here you can write down all phosphorus atoms occupy 4 vertices of tetrahedron. There are 6 pp bonds and the bond angle between them is 60 degrees. So अब अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, मतलब वो ओपन होना चाहता है, 109 फॉर्म में रहना चाहता है, बट आप उसको जबरदस्ती इस स्ट्रक्चर में रखा हुआ है जिसमें वो, मतलब हमने नहीं, बट उसका एग्जिस्टेंस ही ऐसा है, तो 60 डिग्री पे, मतलब उसमें एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है। इसीलिए फॉस्फोरस जो है इट इज वेरी रिएक्टिव, जैसे ही उसको मौका मिलेगा ना रिएक्शन करने का किसी और से, वो फटाक से रिएक्ट कर लेगा। सो यहाँ पे लिख लो इसी में, सिंस bond angle is 60 degree, which is against normal tetrahedral bond angle. So phosphorus molecule is strained molecule, बहुत ज़्यादा strain है उस molecule पर, so it is chemically very reactive. Got it? लिखो ये। समझ में आ रहा है एवरीवन? जस्ट लेट मी नो, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लाइक, अब थोड़े से हम अलग से बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ silicate ion. Silicate ion is SiO4 4 माइनस, मतलब सिलिकॉन सेंटर पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 माइनस है तो 4 नेगेटिव चार्ज रहेंगे, एक ऑक्सीजन आउट ऑफ द प्लेन होगा हमारी तरफ और एक ऑक्सीजन बिलो द प्लेन होगा दूसरी तरफ। ओके, and it will be like this again, the hybridization of here is going to be sp3. Is it clear?
और समटाइम्स इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है सिलिकेट का, उसको कई बार इस तरीके से भी शो करते हैं, लाइक दिस। ये ऑक्सीजन है नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी, और इस ऑक्सीजन के पीछे सिलिकॉन है। ओके, तो वो सिलिकॉन को मैं डॉट से दिखा देती हूँ, और इस तरीके से ये आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर दिए हैं। तो sometime you might come across with a structure like this, तो कंफ्यूज नहीं होना है, it is nothing but SiO4 4 minus। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा H2O2 जो मॉलिक्यूल है वो एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है। ये एक बुक, जैसे आप बुक को ओपन करते हो ना, तो इट इज नॉट इन प्लेन, इट इज लाइक दैट। तो इसका जो ज्योमेट्री वगैरह है वो थोड़ा अलग है। ऑक्सीजन इमेजिन करो बुक के सेंटर पे है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इट इज लाइक दिस। एंड ये बुक का आपके पास सेंटर है। इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे, ऑफ कोर्स इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर होंगे। इन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 148 पाइकोमीटर है। ओके, एंड इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 94.48 डिग्रीज। यहाँ पे भी 94.48 डिग्रीज। अच्छा, और ये जो बुक टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल होता है इट इज 113.30, लाइक 113 डिग्री ऑन 30 डैश। सो अभी क्या है कि H2O2 इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जिस, वैसे तो आपको कभी बॉन्ड एंगल याद नहीं करने होते, लेकिन अमोनिया का याद करना पड़ेगा 107, वाटर का याद करना पड़ेगा 104.5, एंड नॉर्मल टेट्राहेड्रल 109.5। तो ऐसे ही H2O2 के बॉन्ड एंगल से वो थोड़ा सा यहाँ पे याद करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो, मतलब अभी नहीं तो एस ब्लॉक जब हम हाइड्रोजन चैप्टर आएगा आपको केमिस्ट्री में, तो वहां याद करनी पड़ेगा। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ which is 148 picometer is larger than the expected due to repulsions between the lone pairs on the two oxygen atoms। So what they mean is, of course दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड हो रहा है, कायदे से उनका जब प्रॉपर जो बॉन्ड लेंथ होता है वो नॉर्मल होना चाहिए। बट क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है, वो भी दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उनके बीच में काफी रिपल्शन है, जिसकी वजह से दोनों ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे से थोड़े दूर है। नेक्स्ट, it has book like structure, angle is 113 degree or 30 dash। Okay, the H2O2 is the smallest molecule known to show restricted rotation। ओके, रोटेशन का क्या मतलब होता है कि एक्चुअली जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे स्टैग्नेंट पड़े रहे, नहीं। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रही हूँ, तो ये बॉन्ड जो है वो घूमता रहता है, रोटेट करते रहेंगे बॉन्ड। ओके, जिसको बोलते हैं रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है कि वो रोटेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजन। तो यहाँ पे भी ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लेंथ यूजुअली रोटेट कर जाते हैं आसानी से, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। तो सिंगल बॉन्ड लेंथ होने के बावजूद इसको रोटेट करना चाहिए, बट इट इज नॉट रोटेटिंग फॉर सम रीजन। तो ये उनमें से स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो होता है। और अगेन उसका रीजन यही है, लिख लो यहाँ पे,
ड्यू टू repulsion between the OH ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है इसके बीच में और इसके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिपल्शन है, जिसकी वजह से वो रेस्ट्रिक्टेड, मतलब अगर घूमेंगे तो एक दूसरे के आसपास आने के चांसेस हैं, आसपास आएंगे तो रिपल्शन होगा, तो व्हाई अ मॉलिक्यूल विल बी अंडरगोइंग टू लेस स्टेबल फॉर्म। ओके ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा ये ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जो है H2O2 का सिमिलर होता है, चाहे सॉलिड फॉर्म हो चाहे लिक्विड फॉर्म, बट बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ है जो थोड़ा डिफर करेगा, बट आपको इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। ये जो हमने डेटा लिखा है वो H2O2 का गैसियस फॉर्म में, अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस यू माइट कम अक्रॉस, बट यू हैव टू लर्न फॉर द गैसियस फॉर्म ओनली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज SOCl2। अच्छा, SOCl2 is known as हाइड्रोनाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, सल्फर सेंटर पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, क्लोरीन क्लोरीन एंड डबल बॉन्ड O। अगेन ज्योमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि हम लोन पेयर को काउंट नहीं कर रहे हैं। लास्ट एग्जांपल हियर इज XeO4। जेनॉन सेंटर पे 4 ऑक्सीजन है, तो टेट्राहेड्रली 3 ऑक्सीजन को अरेंज कर दो अराउंड दी जेनॉन। ओके, अगेन जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे भी sp3, स्टेरिक नंबर निकालोगे बट ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ड्रॉ दिस। डन। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख के समझ में आ रहा है कि एक S होगा, 3 P होंगे, P के तीनों होंगे इन द साइड डाउन। इट इज द मिक्सिंग ऑफ 1S, 3P and 1D ऑर्बिटल। ज्योमेट्री इनकी मोस्ट, जब भी 5 वैल्यू आ रहा है, आपको पता ज्योमेट्री क्या होगी, मैं बता चुकी हूँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, हमेशा स्टेरिक नंबर इज 5। ठीक है, अब इसके भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं जब हम लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे। दिस इज टाइप, शेप एंड एग्जाम्पल। टाइप में हम सबसे पहले बात करेंगे AB5 का। AB5 मतलब सारे के सारे बॉन्डिंग है, तो सारे के सारे बॉन्डिंग है तो नॉर्मल ज्योमेट्री रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल। नेक्स्ट अगर हमारे पास एक लोन पेयर आ जाए, दैट इज AB4 and 1 lone pair, in that case you remember the geometry is going to be seesaw, which is example ले लो SF4 XeO2F2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके भी एग्जाम्पल लिख लो, PCl5, PBr5, PF5, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। अब अगर हमारे पास है AB3 और 2 लोन पेयर, okay, then they are going to give you T shape. All we have done here. Example ClF3, or you have XeF3 plus. एक बार ट्राई करना इन सब का ज्योमेट्री खुद से अंडरस्टैंड करने का। ओके, नेक्स्ट इज AB2L3, दैट मींस 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। ऑफ कोर्स 2 है तो लीनियर ही फॉर्म करेगा हमेशा, ज्योमेट्री या शेप जो है वो लीनियर रहेगी। एंड हियर एग्जांपल इज XeF2 I3 minus ICl2 okay, so in this write down according to PSE PR theory, lone pairs will occupy equatorial position. That I have already told you कि जब हम trigonal bipyramidal की बात करें, they are going to occupy the equatorial positions, not the axial positions, because they means lone pair, less repulsion in equatorial position. तो इक्वेटोरियल पोजीशन में रिपल्शन जो है वो कम मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं PCl5 नहीं SF4 ले लूं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, एक ऊपर फ्लोरीन, एक यहाँ पे फ्लोरीन और इधर लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है, इमेजिन करो इक्वेटोरियल पोजीशन एक अप साइड और एक डाउनवर्ड साइड, ये आपके पास प्लेन में है, और ये जो दोनों फ्लोरीन है एक ऊपर है प्लेन के और एक प्लेन के नीचे है। तो ये जो लोन पेयर है इन दोनों फ्लोरीन से 90-90 का रिपल्शन फील कर रहा है, और इन दोनों फ्लोरीन से 120-120 का रिपल्शन फील कर रहा है। मान लो मैं लोन पेयर इस पोजीशन पे रखती, फ्लोरीन हियर, फ्लोरीन हियर, फ्लोरीन हियर एंड फ्लोरीन हियर। अब इस केस में एक्चुअल पोजीशन में ये इससे 90, इससे 90 और इससे 90, इन तीनों से ही 90 डिग्री पे रिपल्शन फील कर रहा है, और इस वाले से खैर थोड़ा सा दूर है 180 डिग्री पे। तो 3 फ्लोरीन एटम से 90-90 डिग्री पे रिपल्शन फील कर रहा है, और यहाँ पे 90-90 डिग्री पे सिर्फ 2 फ्लोरीन से ही फील कर रहा है। ओके, और 120 इज लाइक मैक्सिमम डिस्टेंस। 120 पे ऑलरेडी फ्लोरीन, बाकी दोनों फ्लोरीन 120-120 डिग्री पे है, तो वो फिर भी काफी दूर है, तो रिपल्शन कम है यहाँ पे। इसीलिए लोन पेयर को हम कौन से पोजीशन पे रख रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं, बाकी एक्चुअल पोजीशंस पे। ठीक है, ओके, this is your important point number 1. Second point is that if you have जैसे हमने PCl5 लिया, तो PCl5 में मतलब सारे के सारे क्लोरीन सेम ही है, मतलब क्लोरीन ही है, सब डिफरेंट नहीं है। मान लो ये ऐसा एग्जांपल देते PCl3F2, तब क्या करोगे? तो उस केस में हमको ये देखना है कि फ्लोरीन को कहाँ रखना है, क्लोरीन को कहाँ रखना है ना। तो फॉर दैट मोर electronegative atoms will prefer to occupy axial position, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल पोजीशन रहेगा। मान लो मैं ले रही हूँ PCl3F2, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन इस पोजीशन पे रहेंगे, और बाकी तीनों पोजीशंस पे कौन से रहेंगे, क्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है जहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा हो,
In that case, what we have to do? Okay, so here we have, since double bond occupy more space, therefore they will prefer equatorial positions. कि जैसे लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए, रिपल्शन कम करना है, वैसे ही डबल बॉन्ड पे भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल्दो दे आर बॉन्डिंग ओनली, बट देयर स्टिल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको भी ज्यादा स्पेस चाहिए रहने के लिए। अब उनको भी ज्यादा स्पेस चाहिए तो ऑफ कोर्स दे विल प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन रादर देन योर equatorial position. Okay, understood everyone? Any doubt? समझ आ रहा है सबको? Okay, now let's do some examples. फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं AB5 टाइप का, जिसमें सारे बॉन्डिंग हो गए। तो पहला एग्जाम्पल ऑफ कोर्स PCl5, तो P यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्लोरीन, और यहाँ पे एक्सियल पोजीशंस पे भी क्लोरीन। तो ज्योमेट्री इज समथिंग लाइक दिस। ये ट्रायंगुलर होता है, प्लेन में रहता है, एक अप साइड होगा और एक डाउन साइड होगा। ओके, इज इट क्लियर? नाउ इसके बारे में थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है, दैट राइट डाउन, इट इज कोवेलेंट इन द गैस फॉर्म। मतलब गैसियस फॉर्म में तो कोवेलेंट रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा, बट इफ इट इज इन solid form, then it exists as ionic solid। तो वो solid form में रहेगा, तो it's not, it's just not PCl5, it forms PCl4 plus and PCl6 माइनस, दो फॉर्म कर लेता है, PCl4 भी फॉर्म कर लेता है और PCl6 भी फॉर्म कर लेता है। इस तरीके से सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में कंबाइन फॉर्म हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ एक ही PCl नहीं है ना, और भी PCl रहेंगे, तो एक ही PCl5 नहीं है, बहुत सारे PCl5 है। तो वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ आयंस, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। जिस केस में अगर PCl4 है, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल, और अगर PCl6 है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब अगर हम इस PCl5 की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारे के सारे बॉन्ड लेंथ जो है वो सिमिलर नहीं है। ओके, जस्ट राइट डाउन ऑल PCl bond lengths are not similar. Okay, axial bonds जो हैं they are longer than, to minimize the repulsion है ना, axial bonds are longer than equatorial bonds. Write down this.